السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم حضرات، یہ سلسلے وار پروگرام چل رہا ہے اور آج اس کا 60واں درس ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی اور صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے 3 پروگرام سے غالباً یہ بات چل رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں 17 جملے بیان کیے۔ آپ نے اپنا خود تعارف، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، تو اس میں سے ہم نے آپ کے سامنے 4 باتیں اب تک بیان کی، اور آج جو ہے اسی کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الشوق مرکبی، شوق میری سواری ہے، شوق میری سواری ہے۔ پہلے سمجھ لیں شوق کیا ہے۔ ہم جتنا بھی کام کرتے ہیں دنیا میں، اس کی بنیاد ہوتی ہے ہمارا شوق۔ ایک آدمی کو اچھی گاڑی کا شوق ہے تو وہ اس کے پیچھے دیوانہ ہے، ایک آدمی کو اچھا کپڑے پہننے کا شوق ہے تو وہ کسی طریقے سے اس کو جو کچھ بھی ہماری چیزیں ہیں وہ منحصر ہے کس کے اوپر؟ شوق کے اوپر۔ اللہ کے رسول سلام فرما رہے ہیں کہ شوق میری سواری ہے۔ شوق کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات کا شوق۔ اگر کسی بھی آدمی کو یہ سودا سوار ہو جائے کہ مجھے اپنے رب سے ملنا ہے، تو 2 باتیں اس کی زندگی میں آنی ہی آنی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں غلط کام کر ہی نہیں سکتا۔ ایک بہت ہی نیچرل چیز ہے کہ اگر کسی کو یہ شوق ہو گیا کہ مجھے اپنے رب سے ملنا ہے تو وہ دنیا میں کوئی غلط کام نہیں کر سکتا۔ دوسری چیز، اس کا اس دنیا میں دل ہی نہیں لگے گا، اس دنیا میں اس کا دل نہیں لگے گا۔ اس کا ہر وقت دل کہاں اٹکا رہے گا؟ اس کے شوق میں۔ ابھی نہیں ہم گاڑی لے آتے ہیں، کیسا ہمارا شوق ہوتا ہے، صبح بھی پوچھتے ہیں، شام میں بھی پوچھتے ہیں، پھر 2-4-10 دن کے بعد وہ شوق ڈھیلا پڑ جاتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے معاملہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ سے ملاقات میرا شوق ہے اور یہ میری سواری ہے۔ گویا میں پوری زندگی جو طے کر رہا ہوں وہ اس بنیاد پر کہ مجھے اپنے رب سے ملنا ہے۔ یہ جو ہم موت سے گھبرا رہے ہیں، اگر ایمان سے بتائیے، ابھی یہ معلوم ہو جائے، فرشتہ آ کر کے آپ کے کان میں کہے کہ آپ مرنے سے قطعی نہیں گھبرائیں، آپ کے لیے جنت الاٹ کر دی گئی ہے، تو ہم ابھی مرنا پسند کرتے ہیں، ابھی مر جائیں تو بہتر ہے۔ ہم مرنے سے کیوں گھبرا رہے ہیں؟ مرنے سے اس لیے گھبرا رہے ہیں کہ مرنے کے بعد کیا ہونا ہے یہ نہیں معلوم ہے۔ یہ بات اگر معلوم ہو جائے تو ہم کو پھر مرنے کا شوق پیدا ہو جائے کہ ہم جلدی مرے تاکہ ہم اپنے اللہ سے ملیں۔ اور اگر ہم نے اس دنیا میں شرارت کر رکھی ہے تو کبھی شوق ایسا پیدا نہیں ہو سکتا۔ ہم مرنے سے بہت گھبرائیں گے کیونکہ ہم کو اپنے بارے میں سب سے زیادہ معلوم ہے کہ ہم نے کتنی غلطیاں کی ہیں، کتنی چیٹنگ کی ہے، سب کچھ ہم کو معلوم ہے۔ لہذا ہم مرنے سے جو گھبراتے ہیں اس کی ایک بنیادی وجہ یہی ہے۔ یہودیوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ دیکھو ہم لوگ بڑے ہی VIP قسم کے لوگ ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اللہ کے نزدیک VIP وہی ہے جو حقیقت میں اللہ سے خوف رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اگر یہ لوگ کہتے ہیں نحن احب اللہ، ہم اللہ کے بڑے پسندیدہ لوگ ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا ان سے کہو کہ اگر تم بہت اللہ تم کو چاہتا ہے تو موت سے کیوں کرتے؟ فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو کہ ہم مل جائے اور اپنے اللہ سے مل جائے جس کو پسند کرتے ہو۔ بھائی جو آدمی جس کو پسند کرتا ہے اس سے اس کی ملاقات بھی کیا کرتا ہے؟ پسند کرتا ہے۔ اللہ نے ان کا امتحان ان کی موت کی تمنا سے لیا کہ تم ان سے کہو کہ تم موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے رب سے ملنے کا شوق رکھتے ہو۔ جب یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کر دی تو وہ موت سے، اللہ بھی جانتا تھے موت سے بہت گھبرا رہے کیونکہ یہاں آنے کے بعد ان کا معاملہ الٹا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرما رہے ہیں کہ مجھے میری جو سواری ہے
वो मेरा शौक है, और वो शौक अल्लाह से मुलाकात है। एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कि एक बंदे को अल्लाह ताला ने ये इजाजत दी कि आप अगर इस दुनिया में और रहना चाहते हैं तो आपको रहने की इजाजत है, और अगर आप अल्लाह के पास आना चाहते हैं तो आप आ जाएं। अपना नाम नहीं लिया, ऐसा बंदा कह के हुजूर ने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये बात हजरत आयशा को मालूम हुई तो हजरत आयशा ने कहा अल्लाह के रसूल फौरन कह दीजिए हम यहाँ रहना चाहते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं तो ये पहले ही बोल चुका हूँ कि मैं अपने अल्लाह से मुलाकात करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे उसकी मुलाकात का शौक है। तो अगर किसी भी, मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने किताब लिखी, कभी मिले तो पढ़िएगा, उसका नाम है शौक वतन, वतन का शौक। जब हमने पहली मरतबा उसका टाइटल देखा तो हम समझे शायद अपने मुल्क से शौक, उन्होंने वतन से मुराद कब्र और आखिरत ली है कि वतन का शौक। अच्छा, जिस चीज से हम घबरा रहे हैं मरने से, घबराने से कुछ भी फायदा नहीं, मरना है भाई। घबरा करके अगर हम कुछ फायदा उठा ले तो चलो ठीक है, घबरा करके कुछ भी हम नहीं कर सकते, तो बेहतर ये है कि मौत का शौक और अल्लाह से मुलाकात का शौक पैदा करें। अब उस पैदा करने में बुनियादी चीज है कि वो शौक उसी वक्त पैदा होगा जब हम इस दुनिया में नेक जिंदगी गुजारेंगे। हमारे ऊपर शौक पैदा हो जाएगा कि हम मरे तो हमारे हालात अच्छे हैं, लिहाजा हमें मरने का शौक है, अल्लाह से हमारी मुलाकात का शौक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का पूरा यकीन था। जैसे यहूदियों को यकीन था कि हमारा मामला खराब है तो मरने से डरते थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम अंबिया को इस बात का यकीन होता है कि हमारा मामला हमारे रब के साथ बहुत अच्छा है। लिहाजा हर नबी को परवरदिगार आलम इस दुनिया में एक मरतबा रहने का अख्तियार देता है कि आप चाहें तो मजीद रह लें, लेकिन कोई नबी आज तक इस दुनिया में रहने का अख्तियार नहीं किया, जिसको हम बहुत पसंद करते हैं। जितना हम उम्र हमारी बढ़ती रहती है उतना हमारी इस दुनिया में रहने की ख्वाहिश भी बढ़ती रहती है। ये एक अलग बात है कि हम अपनी मौत से रोज आना चाह रहे हैं, करीब हो रहे हैं, लेकिन हम डरते बहुत हैं। डरने की बुनियादी वजह सिर्फ ये है कि हमको हमारे बारे में ये नहीं मालूम है कि मेरा मामला कैसा होना है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं कि मेरी सवारी मेरा शौक है, मैं पूरी जिंदगी जो गुजार रहा हूँ वो अल्लाह ताला से मुलाकात के शौक में। इसीलिए जब जब दुनिया उनके सामने पेश की गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, मुझे इस दुनिया से क्या मतलब, मैं तो उस मुसाफिर की तरह हूँ जो दरख्त के नीचे लेट कर थोड़ी देर सो लेता है और फिर अपना रास्ता नापता है, मुझे इस दुनिया से क्या मतलब है। बाद लोगों ने ये ताना दिया कि आप नबी हैं और इतने बड़े हैं, सरवरे कौनैन हैं, सब कुछ है, और आपका जेब आपकी खाली है। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अगर कहो तो ये पूरा ओहद में सोने का बना देता हूँ। अल्लाह के रसूल फरमाने मुझे ऐसा नहीं चाहिए, क्योंकि आपको इस दुनिया से ज्यादा किसकी फिक्र है। असल दुनिया जहाँ से, ये दुनिया कितने दिन की, 60-70 साल की, जितनी शरारत करना चाहे कर ले, जितनी अच्छाई करना चाहे कर ले, 60-70 साल के अंदर जिंदगी हमारी लपेट दी जानी है। लिहाजा अगर हम अल्लाह ताला का से मुलाकात का शौक पैदा कर ले तो एक नफ्सियाती तौर पर यह बात होगी कि हमारी जिंदगी खुद ब खुद सुधर जाएगी। हमारी जिंदगी में सुधार नहीं आ रहा है क्योंकि या तो हम मरने से डर रहे हैं और आखिरत में अपने अंजाम से डर रहे हैं। यकीनी बात है, जो बोएंगे वही काटेंगे। यहाँ अगर हमने आम का दरख्त लगाया है तो आम वहाँ निकलेगा, अगर यहाँ बबूल का दरख्त लगाया तो केकर के ही वहाँ कांटे निकलने हैं। लिहाजा हमको अल्लाह ताला से मुलाकात का शौक पैदा करना चाहिए और उसका वाहिद तरीका है अच्छे अमल के जरिए। दूसरी बात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अफ़्क़त क़ल्बी, एतमाद मेरा खजाना है, एतमाद मेरा खजाना है। एतमाद किस चीज पर? एतमाद इलाही। अल्लाह ताला ने हमारे साथ क्या मामला है, अभी हम कुरान पढ़ते हैं, कुरान में बहुत सी चीजें हमारी जिंदगी से मुताल्लिक, बहुत सी चीजें दूसरों से मुताल्लिक, बहुत सी चीजें दुनिया से मुताल्लिक लिखी हुई हैं, हम पढ़ते भी हैं। अगर इस किताब के जहाँ एहतराम की बात होती है हम सीने से लगाते हैं, चूमते हैं, बहुत ऊंची जगह पर रखते हैं। ये असल सब जाहिरी इसका एहतराम है। असल जो उस पर लिखा है उस पर हमको कितना एतमाद है। वो ये कह रहा है, कुरान मजीद कहता है
کہ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، یہ یہودی اور نصرانی کبھی تم سے دوستی نہیں کر سکتے. آج ہم ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ کسی طرح یہ ہمارے قریبی ہو جائے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایسا کبھی نہیں ہوگا. حتی تتبع ملتہم، یہاں تک کہ تم ان کے بندے بن جاؤ، یعنی کیا ان کی شریعت، یہودی بن جاؤ، نصرانی بن جاؤ، تو تم کو بہت ویلکم کریں گے. لیکن اگر تم یہ کہتے ہو، ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں. کچھ دن پہلے آپ نے نیوز سنی ہوگی کہ یہ شاہ رخ خان جو ہے وہ ایئرپورٹ پر اس کو ستایا گیا. کیا وجہ تھی اس کی؟ شاہ رخ خان کو اسلام سے کیا تعلق ہے؟ نہ روزے کا، نہ نماز کا. بیوی اس کی غیر مسلم، کوئی یہ کلمہ تک نہیں جانتا. صرف نام اس کا کیا ہے؟ آگے خان لگا ہوا ہے. پہلے والا نام تو کنفیوز ہے کہ مسلمان کا ہے کہ ہندو کا ہے. وہ خان لگ کر کے صرف معلوم ہو رہا کیا ہے، یہ مسلمان ہے. انہوں نے برتاؤ کیا اس سے اسامہ بن لادن کی طریقے سے ایئرپورٹ پہ. ہم جو سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کے قریب ہو جائیں گے تو یہ ہم کو ویلکم کریں گے، یہ کبھی نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہ بات اللہ نے کہی. اگر یہ بات ہم کو سمجھ میں آ جائے کہ اللہ نے جتنی باتیں کہی ہیں وہ صحیح ہے، یہی بات اللہ کے رسول کو سمجھ میں آ گئی تھی کہ اللہ نے جو کچھ اس کتاب میں کہا ہے اس سے ایک بال کے برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا. یہ ہماری کیفیت نہیں ہے. ہماری کیفیت ظاہری طور پر قرآن سے بہت رسپیکٹ کی ہے، بڑا احترام کرتے ہیں. اس کے اندر لکھا کیا ہے اس پر ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، اور اگر کبھی بتا بھی دیا جاتا ہے تو ہم اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ایک مثال دیتا ہوں اور کئی مرتبہ مثال دے چکا ہوں. ہمارے پاس پراپرٹی ہے، ہمارے باپ مر گئے ہیں. پراپرٹی میں ہماری بہن کا بھی حصہ تھا، ہم نے کسی کا حصہ نہیں لگایا ہے، قبضہ کیے بیٹھے. آج بھی اسی قرآن میں لکھا ہے. وہ جب قرآن میں لکھا ہے تو یہ اعتماد کیوں نہیں ہو رہا ہے کہ یہ کام کرنا ہی کرنا، اس کے بغیر گاڑی نہیں چلے گی. بھائی جس طریقے سے آپ نماز کی پابندی کی، روزے کی پابندی کر رہے ہیں، اسی قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ عورت کا بھی حصہ ہے، بہن کا بھی حصہ ہے، بیٹی کا بھی حصہ ہے، جس کا بھی حصہ لکھا اس کو دو. لیکن معاملہ چونکہ پیسے کا ہے لہٰذا ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. قرآن روزانہ تلاوت کر رہے ہیں، تلا پڑھتے رہیے تلاوت. یہ تو اللہ کا فضل ہے اور اس کا احسان ہے کہ آپ کے پڑھنے پر وہ آپ کو نمبر دے دیتا ہے، ورنہ ہے نہیں قرآن. اس لیے مولانا ثانی رحمۃ اللہ لیتے ہیں کہ مقصود نزول قرآن اس کی تفصیل ہے. قرآن کے نازل کرنے کا مقصد اس کو سمجھنا اور اس کو اپنی زندگی پر کیا کرنا ہے، لاگو کرنا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ پر ہمارا اعتماد ہمارا خزانہ ہے. آپ خزانہ جس کا ہوتا ہے، ابھی آپ کی جیب میں، آپ کے بینک بیلنس میں جب پیسہ پڑا رہتا ہے تو کتنا ہمارا ایمان مضبوط رہتا ہے، لگا رہتا ہے نا کہ کوئی بات ہوگی دیکھ لیں گے، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا پیسے ہیں، کوئی معاملہ پھنس جائے گا پیسے ہیں. تو وہ پیسہ خزانہ ہے. خزانہ اگر آپ کے پاس ہے، اب کیونکہ ہم اس دنیا دار ہیں تو پیسے پہ ہم اعتماد کرتے ہیں. اللہ کے رسول کے سامنے چونکہ آخرت تھی لہذا ان کا خزانہ اللہ پر اعتماد تھا کہ اللہ اپنے ساتھ ہے، معاملہ جو ہوگا دیکھ لیا جائے گا. بڑی دشمنی تھی مدینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. بڑے لوگ آپ کو جو ہے وہ سیکورٹی دیتے تھے، صحابہ گارڈ سیکورٹی گارڈ کے طور پر کھڑے ہوتے تھے. آپ سوتے تھے تو چاروں طرف سے پہرا رہتا تھا، جنگ میں کہیں جاتے تھے تو پورا. ایک مرتبہ پروردگار عالم نے کہا واللہ یعصمک من الناس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو ہٹا دو، ہم کافی ہے تمہارے لیے. آیت نازل ہوئی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی آیت نازل ہوئی فوراً خیمے سے باہر نکلے اور کہا جتنے لوگ پہرا دو اپنے اپنے گھر میں جا کر آرام کرو، ختم بات ہوگی کہانی. کیونکہ اللہ پر اعتماد اللہ نے نازل کر دیا لہذا وہ ہو گئی بات. ہمارے سامنے بھی ایسی آیتیں بہت سی موجود ہیں، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہیں، ہمارے سامنے موجود ہیں، لیکن ہمارا اعتماد ہزاروں چیزوں پر ہے. پروردگار عالم سے ہٹ کر کے ہمارا اعتماد ہر چیز پر ہے. خاص کر ویسے تو جب ہمارے حالات بہت اچھے چلتے رہتے ہیں، اسموتھ لائف گزرتی رہتی ہے تو ہم بہت اللہ والے رہتے ہیں. معاملہ تو پتہ چلتا ہے جب ہمارے اوپر مصیبت آئی ہے، ہم پریشان ہیں، پیسے کی پرابلم ہے، ماں بیمار ہے، ادھر سے معاملہ ادھر سے معاملہ، ایسے معاملے میں ہم پروردگار عالم کے اوپر کتنا اعتماد کیے بیٹھے. وہاں پر کبھی مایوسی آتی ہے، کبھی ہم سوچتے ہیں معلوم نہیں اللہ ہے بھی نہیں ہے، ہم اتنا پریشان ہے دیکھو کچھ بھی نہیں کر رہا ہے.
कितने हालात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खराब पेश आए, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे मौके पर जब वो तलवार लेकर खड़ा है कि अब तुम्हें कौन बचाएगा, वो तो कद कहते मेरा रब मुझे बचाएगा, क्योंकि ये तुम्हारी इलाही है। अगर रब ने मौत नहीं रखी है तो कोई माई का लाल मार नहीं सकता, और अगर रब ने मौत रख दी है तो सारी दुनिया की सिक्योरिटी बॉडी गार्ड ही मार देता है। इंदिरा गांधी को कोई बाहर वाला नहीं मारा, बॉडी गार्ड मारा। जब आ जाता उस जो पैसा लेता था तनख्वाह कि मैं आपके जान की हिफाजत करूंगा, उसी ने वो पैसा ले करके जान को ले लिया उठा करके। तो जब आ जाती है तो ऐसे आती है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं सिफ़त समझी कि अल्लाह पर एतमाद हमारा खजाना है। तुम लोगों का एतमाद, कभी तुम्हारी ताकत होती है, कभी तुम्हारा पैसा होता है, कभी तुम्हारा खानदान होता है, कभी ये होता है हम बड़े बिजनेसमैन हैं, कभी होता है कि हम बड़े इल्म वाले हैं। ये सारी चीजें तुम्हारा खजाना है। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं मेरा खजाना परवरदिगार आलम पर एतमाद है। और ये यकीनी बात है कि जिसका परवरदिगार आलम पर एतमाद हो जाएगा उसका सारा मामला अपने आप हल हो जाएगा। जो लोग अल्लाह से डरते हैं, जो अल्लाह पर एतमाद करते हैं, वो किसी से नहीं डरते। और अगर हमने अल्लाह से डरना छोड़ दिया है तो फिर सबसे डरना पड़ेगा, हर जगह आपको डरना पड़ेगा। कहीं ऐसा नहीं होगा कि बगैर डरे हमारी जिंदगी गुजर जाए। और अगर रब से डरते हैं, रब पर एतमाद करते हैं, तो परवरदिगार आलम कहता अना अज़ल्लु अब्दी भी, मैं आपके साथ वैसा ट्रीटमेंट करता हूँ, वैसा बर्ताव करता हूँ जैसा आप मेरे बारे में गुमान करते हैं। अगर आप गुमान करते हैं कि रब ऐसा है कि हमारी जान हर हाल में हिफाजत करेगा, तो परवरदिगार आलम कहता है कि मैं वैसा करता हूँ। और अगर तुमको यह है कि साहब मालूम नहीं हिफाजत हो रही है, तो अल्लाह भी अपना क्या करता है, हिफाजत को बटोर के किनारे रख देता है। बात समझ में आ गई? अब ये अल्लाह ताला के पर एतमाद करने की जो कैसे हमारा एतमाद बढ़े, ये दो एक बातें बताकर हम आगे चलते हैं। कहना तो बहुत आसान है, ये तकरीर करना भी बहुत आसान है। मौलाना साहब तो बहुत बोलते रहते हैं, हजारों बातें बोलते रहते हैं। अल्लाह ताला पर अगर एतमाद और बढ़ाना है हमको, अल्लाह के रसूल क्या करते थे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठकर गौर व फिक्र करते थे। जितना आप अल्लाह की कारीगरी पर गौर करेंगे उतना परवरदिगार आलम आपके दिल में उतरता चला जाएगा। एक एक चीज पर कभी गौर करें, परवरदिगार आलम की कारीगरी पर, दुनिया पर, अपनी जात। अल्लाह ताला ने कहीं नहीं कहा है कि मुझे अगर तुमको तलाश करना है तो खूब रोजा रखो हम मिल जाएंगे, नहीं। उसने कहा अगर मेरे बारे में तुमको जानना चाहते हो ना तो अपने बारे में गौर करो। अपना हाथ देखो, अपना चेहरा देखो, अपनी आंखें देखो, अपना दिमाग देखो। आप ये सब चीजें पे गौर करेंगे, हम तुमको समझ में आएंगे हम कहाँ हैं। तो अगर परवरदिगार आलम पर एतमाद, अल्लाह ताला की रुबूबियत, अल्लाह ताला मालिक है, अल्लाह ताला खालिक है, अगर इन सिफतों पर अगर हम गौर करना शुरू कर दें तो हमको ये अल्लाह ताला पर एतमाद क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। जितना हम अल्लाह ताला के इन सिफत पर गौर करना बंद कर देंगे उतना अल्लाह ताला भी हमारे ज़हनों से क्या होता जाता है, अलग होता चला जाता है। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल हुज़्न रफ़ीक़ी, गम मेरा साथी है। क्या है? हम गम से बहुत घबराते हैं। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि गम मेरा साथी। किस चीज का गम है आपको? पैसे का तो गम है नहीं, मरने का भी गम नहीं है, फिर किस चीज का गम है? दो गम है। पहला गम यह है कि हमारी तरह ही जान रखने वाले, गोश्त पोस्ट रखने वाले लोग अल्लाह के साथ शिर्क कर रहे हैं और जहन्नम में चले जाएंगे। ये गम खाया जा रहा है। ये अलग बात है, हमको ऐसा कभी गम नहीं होता। हमको तो सारा गम अपने बीवी, बच्चे, घर, पैसे, दौलत, तिजारत, इन सब का गम है। हम क्यों परेशान हैं? इन सब में परेशान है। कहीं ट्रक लड़ गया है तो वो परेशानी है, कहीं मॉल जो है वो तिजारत का नुकसान हो गया है वो परेशानी। एक हमारे दोस्त बहुत बड़े ताजिर है, एक बिल्डिंग खरीदी उन्होंने दुबई में 8 मिलियन की, 8 मिलियन दिरहम की। उस वक्त बिल्डिंग का वहां बड़ा दौर था। 1-2 साल के अंदर वो बूम पर पहुंची, 60 मिलियन आया उसका रेट। मुझसे मशवरा किया, मैं बोला देखो मैं तो एक मौलवी आदमी। उन्होंने कहा नहीं आप जो बोलेंगे हम वो करेंगे। हमने कहा मेरा तो दिल कहता है कि अगर इतनी आ रही तो आप बेच डालो, खत्म करो कहानी। उनका लीगल एडवाइजर था, बड़े बड़े वो सब पेड लीगल एडवाइजर थे। उनसे उन्होंने कहा मौलाना को क्या मालूम यार, बकने दो उनको तुम।
ये 1 साल के बाद 100 मिलियन में जाएगी, आप इसको रोकिए। खैर उन्होंने रोक लिया। उसके 6 महीने के बाद दुबई डूबने लगी। अब वो 60 मिलियन से गिरते 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 अब सोच रहे हैं अब बढ़े अब बढ़े अब बढ़े। वो इस वक्त 8 मिलियन पर कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। बहुत परेशान हो गए। मेरे साथ ही नमाज पढ़ते थे, उठते बैठते थे। मैंने देखा काफी परेशान। अब मुझसे बताया इन्होंने मैं बेच दिया नहीं बेचा, कोई बात ही नहीं, हमें भी क्या फिक्र। हमने कहा आजकल आप बहुत परेशान लग रहे, क्या चक्कर है? उन्होंने कहा भाई वैसा है कि मुझे 60 मिलियन रेट लगा था, मैंने आपसे मशवरा भी किया था, वो बेचा नहीं, 100 मिलियन के चक्कर में वो डूब गया सारा मामला। अब 8 मिलियन में भी कोई लेने के लिए तैयार नहीं, 8 मिलियन में भी कोई ले तो मैं दे दूं। हमने कहा आपका गम खत्म करने का एक तरीका, ये इसलिए बता रहा हूं, ये सारे ताजिर के लिए ये एक तरीका है अपने गम को खत्म करने का, अगर लॉस होता है तो। इसलिए बयान कर रहा हूं कि कैसेट भी सुनी जाएगी, लोग भी इसको देखेंगे। अगर ये एक फार्मूला ताजिर अपनी जिंदगी में अपना ले तो उसको लॉस का जो गम है वो क्या हो जाएगा, तो नीचे हो जाएगा। हमने उससे कहा, अपने से दोस्त से, हमने कहा अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा 8 मिलियन वाला माल 60 मिलियन में एक आदमी खरीद लेता, खरीदने के 1 महीने के बाद वो डूब जाता, कौन? उसको तो डूबना था क्योंकि रेट तो गिर रहा था। अल्लाह ताला ने तुम्हारी वजह से उसको 52 मिलियन नहीं बल्कि 60 मिलियन से बचा लिया। तुम्हारा 8 मिलियन डूबना है ना, उसका 60 मिलियन डूबता अगर वो लेता तो तुम्हारी वजह से अल्लाह ताला ने उसको बचाया। आप बताइए कि तुमको कितना बड़ा सवाब मिला कि अगर वो डूब जाता तो वो 60 मिलियन वो तो चौराहे पे आ जाता। हमने कहा तुम अभी भी उम्मीद ये है कि तुम 8 मिलियन में हो सकता तुम्हारा बिक गया, तुम्हारा एक लॉस नहीं हो। तो हमेशा ये समझे नुकसान हो, हम ताजिर नुकसान किसको कहता है? ताजिर नुकसान बहुत कम अपनी कैपिटल को डूबने को कहता है, वो तो ओरिजिनल नुकसान होता है, जो उसका फायदा हुआ रहता है उसी को नुकसान को वो नुकसान कहता है। एक दूसरी मिसाल देता हूँ, मिसाल के तौर पर जो भी ताजिर बिजनेस स्टार्ट लिया है, 2 तरीके से मालदार दुनिया में है। एक मालदार बाप की वजह से हो गए हैं, वो किसी वजह से हुए होंगे। दूसरे मालदार उन्होंने सही गट इस्तेमाल किया, तिजारत का मालदार हो गए। तीसरी मालदारी अल्लाह ताला ने किसी वजह से उसको बगैर गट के अता कर दी, वो 80% दुनिया में है, वरना ज्यादातर नीचे से है या बकिया अपनी सही कोशिश की बुनियाद पर अल्लाह ने माल अता फरमा दिया। अब जब तुम्हारा डूबा पैसा, जिस वक्त भी डूबा, 2 साल बाद 5 साल बाद, ये आप सोचे जब हमने स्टार्टिंग ली थी तो हमारे पास कितना पैसा था, तो आपको सुकून हो जाएगा कि हमारा पैसा जो डूबा है वो फायदे वाला डूबा है, असल हमारा नहीं डूबा है। जैसे मैंने उनको समझाया कि आप 8 मिलियन आपका बरकरार है, अल्लाह ताला ने तुम्हारी वजह से 60 मिलियन बैठे एक आदमी डूबता तो वो तो बेचारा पूरे उसकी जिंदगी, उसके अतराफ में जो लोग थे सारे के सारे तबाह बर्बाद हो जाते। 60 मिलियन बहुत होता है, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, और 10 लाख में इंडियन 14 लाख होता है, 140 लाख होता है 10 लाख में। आप अंदाजा करें, 1 करोड़ 40 लाख 1 मिलियन में होता है इंडियन, अरबों खरबों रुपए हो गए। तो हमने कहा कि इस तरीके से, तो हमको जो गम है ना वो इस किस्म का गम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो गम था वो 2 गम था। इंसानियत जो शिर्क में मुब्तला है उसका क्या होगा? कुरान मजीद ने जब बहुत ज्यादा देखा अल्लाह ने कि हमारा नबी तो इसी में घुल जाएगा, इसी गम में घुल जाएगा, न इसको पैसे का गम है, न इसको घर अच्छा होने का गम है, न इसको गाड़ी घोड़े का गम है। गम सिर्फ ये है कि इंसान अपने आप को आग से बचा ले। इस गम में अल्लाह ने महसूस किया कि हमारा महबूब खत्म हो रहा है। कुरान मजीद कहता लाल लका बाखरन तकाला सारे मिलम युमिनु बिहाज़ा नबी कहता था, मोहम्मद आजम आप ऐसा लगता है कि आप अपने इनके पीछे अपनी जान खपा देंगे। अरे आपका काम बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनको तबलीग करें, छोड़ें नहीं होते हैं। आप इतना गम नहीं करें तो पूरी आप अपनी जिंदगी इनके पीछे लगा दे रहे हैं, इतना काम आप कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी मिसाल ऐसी है कि जैसे किसी आदमी ने आग जलाई, जब आग जलती है बरसात के मौसम में खासकर देहात में तो बड़े कीड़े आते हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उनको कीड़ों को ये नहीं मालूम कि हम जिसमें जा रहे हैं ये आग है और हम तबाह हो जाएंगे। मेरी मिसाल ऐसी है कि मैं उस आग के किनारे खड़ा हूँ, एक एक कीड़े को निकाल कर बाहर करना चाह रहा हूँ कि ये आग है, इसमें न पड़ने पाए। पूरी हमारी कोशिश ये है कि बंदा आग से बच जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी यही कोशिश की कि किसी तरह इंसानियत किससे बच जाए।
आग से बच जाए। उस आग से बचाने के चक्कर को आप कह रहे हैं कि अल हुज़्न रफीकी, गम मेरा साथी है, वरना आपको और किसी चीज का गम नहीं था, गम सिर्फ ये था। दूसरा गम क्या था? एक तो पूरी दुनिया का गम, बहुत बड़ा गम होता है। हम तो हमारे घर में बीवी बच्चे परेशान है तो उनके गम में हम जो पूरी दुनिया का गम लिए बैठा होगा उसकी क्या हालत होगी। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत का गम, क्या आपको मालूम है कि उम्मत गलती भी कर रही है? कितनी मर्तबा आपने अल्लाह से रिक्वेस्ट किया कि अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर दे। एक रात में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत ईसा अलैहि सलाम ने जो दुआ की थी, उसी आयत को तिलावत करते करते पूरी तहज्जुद गुजर गई। तर्जुमा क्या है? इन तुअज़्ज़िबहुम फइन्नहुम इबादुक, अल्लाह अगर तो इनको अजाब ही देगा, यकीनी बात है तू रब है, ये तेरे बंदे हैं, जैसे चाहे अजाब दे दे, हम तो मजबूर हैं, तू पकड़ सकता है, हमारी गलती भी है, तेरा जुल्म भी नहीं होगा, गलती हमने की है, लेकिन अगर तू माफ कर दे तो बड़ा गफूर रहीम है। ये आयत पूरी रात तिलावत करते रहे अपने उम्मत के दर्द में। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत का इतना दर्द, अब उम्मत को कितना दर्द है भाई? उम्मत का भी तो कुछ फर्ज बनता है कि अगर अल्लाह के रसूल हमारे गम में इतना परेशान है तो कम से कम उनके गम को कम करने की फिक्र करो। वो गम कैसे उनका कम होगा? हम बहसे के उम्मती गुनाह कम से कम करें कि अल्लाह के रसूल का सर कयामत में शर्मिंदा नहीं हो कि ये हमारी उम्मती है और इतना गुनाह कर बैठे। अगर हम अल्लाह के रसूल की हकीकत में मोहब्बत चाहते हैं, आपको अपनी माँ से मोहब्बत है, अपने बेटे से, आपका यही होगा ना कि कोई ऐसा काम नहीं करे कि अम्मी के दिल को तकलीफ पहुंचे। अम्मी की खिदमत यही नहीं है कि आप अम्मी को अच्छा कपड़ा पहना दें, अच्छा खिला दें, सोना से लाद दें, नहीं। अम्मी की असल खिदमत यह है कि आप ऐसी बातें नहीं करें, ऐसा काम नहीं करें कि अम्मी का सर शर्म पे झुक जाए, अम्मी को अंदर से तकलीफ हो जाए। यही बात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी हमको बहसी के उम्मती करना है कि ऐसा कोई काम नहीं करे कि अल्लाह के रसूल का गम जो है वो है, अगर हम बांट नहीं सकते तो कम से कम बढ़ाने की फिक्र नहीं करें। हमारा जो मामला हो रहा है वो बढ़ाने का मामला हो रहा है। एक मरतबा आपको एक वाकया नकल किया था ना कि एक फकीर जामे मस्जिद दिल्ली में बैठा हुआ था, एक अंग्रेज आया, उसका पर्स गिर गया, उसने फकीर ने उठा लिया, देखा बड़ा पैसा है, सोचा दिन भर की दाढ़ी लगी, चलो अब क्या करने का है, लेकर पर्स चला गया। कहीं कुरान का दर्स हो रहा था, वहां जाकर बैठ गया। वहां पर वो मौलवी साहब तकरीर कर रहे थे कि कयामत में हर शख्स, कुरानी मजीद की आयत भी है कि कयामत में हर शख्स जिसको मानता है उसके झंडे के नीचे होगा। अगर आपके आइडिया शाहरुख खान है तो शाहरुख खान के झंडे के नीचे होने का है, फिरौन का आइडिया है तो फिरौन के, शाहरुख खान जहाँ जाना है वहीं आपको भी जाना है। अल्लाह के रसूल को आइडियल बनाओगे, अल्लाह के रसूल जहाँ जाएंगे वहां तुम भी जाओगे। तो ये दुनिया में तय कर लेना है कि हमको किसके झंडे के नीचे रहना है, वो यही तय करना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो जो उसने सुना कि रात क़यामत में हर आदमी अपने नबी के झंडे के नीचे होगा, इसको शक लग गया कि हर नबी अपने झंडे के नीचे होगा। खैर बात हो गई। कुछ दिन के बाद वो अपनी बीवी को विजिट कराने लाया, वही अंग्रेज। इसने देखा वो आ रहा है, इसके पास पर्स अभी रखा हुआ था, पर्स की जब कभी मिलेगा हम दे देंगे। उसने कहा ये आपका पर्स है, अंग्रेज से कहा। तो उसने कहा कि तुमने देखा नहीं इसको? क्या देखा था? कहा पैसे निकाल लिए? कहा नहीं निकाले। कहा दिल चाहा था निकालने का लेकिन निकाला नहीं। कहा क्यों? कहा हमारे यहाँ हमने एक तकरीर सुनी, उसमें ये कह रहा था कि कयामत में हर आदमी अपने नबी के झंडे के नीचे होगा। मैंने ये सोचा तुम तो क्रिश्चियन हो, तुम ईसा अलैहिस्सलाम के झंडे के नीचे होगे, मैं मुसलमान हूँ, मैं नबी के सल्लल्लाहु के झंडे के नीचे होऊंगा। तुम अपने नबी से कंप्लेन करोगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती ने हमारा पर्स मारा, तो हमारी वजह से हमारे नबी की को तकलीफ होगी। ज्यादा मैं ये नहीं चाहा कि कयामत में मेरी वजह से मेरे नबी को तकलीफ पहुंचे। ये पर्स अपना पकड़ो। अब हम जितनी बिदअतें करते हैं, जो भी गलत काम करते हैं, खासकर देखिए एक होता है गलत काम, एक होता है बिदअत। बिदअत और गलत काम में फर्क है मालूम? हर गलत काम करने वाला मुसलमान 100% ये समझता रहता है कि ये गलत हो रहा है। आज तक कोई शराबी मुसलमान ये कंफ्यूज होकर शराब नहीं पिया है कि शायद शराब हलाल है। ऐसा नहीं है, जानता है, 100% जानता है कि शराब हराम है। बिदअत करने वाला
बिदत करने वाला अल्लाह के रसूल के नाम पे झूठ बोलता है। वो ये कहता है कि ये अल्लाह के रसूल का तरीका है और अल्लाह के रसूल ने वो नहीं किया है, लिहाजा आपने अल्लाह के रसूल की बिदअती कर डाली। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आपके लिए हमारे लिए बड़ी दुआएं करते हैं कि अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर दे, पता है वो दुआएं मनकूल है। वही नबी कहता है कि जब फरिश्ते ये कहेंगे कि ये आपके उम्मती ने आपके दीन में अपनी मर्जी से दीन को दाखिल कर दिया, तो कहेंगे सोकन ले मन गैर आबाद दीनी, कि मेरी निगाह से हट जाओ जिन लोगों ने मेरे दीन को मेरे आने के बाद तब्दील कर दिया। गुनाह पर उतना नाराज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं हो रहे हैं अपनी उम्मत से जितना इस बात पर गुनाह हो रहे हैं कि मेरा नाम ले करके तुम सुन्नत को मुर्दा करके और बिदत को जिंदा करने। लिहाजा जिंदगी में दो चीजों से, पहला हुजूर का गम, शिर्क कर देते हैं। पूरी दुनिया शिर्क कर रही है, अल्लाह के रसूल सख्त परेशान है और आपने बड़े कंप्रोमाइज किए, बड़े लोगों के साथ किसी तरीके से बात बन जाए, लेकिन मक्की जिंदगी में इतना सख्त माहौल होने के बाद शिर्क को आपने एक सेकंड के लिए बर्दाश्त नहीं किया। मक्के के बड़े मसाइल से अल्लाह के रसूल जब नबी का ऐलान किया, वहां के सिक्योरिटी का मसला था, आप कहते कि मैं आप लोगों को सिक्योरिटी दूंगा। तालीम का मसला था, आप बोलते मैं लोगों को अंदर तालीम पे, सारा मक्का आपके साथ टूट पड़ता, क्योंकि अमीन और सादिक का लक़ब तो पहले ही दे चुका था। लेकिन आपने एक ऐसा इशू उठा दिया, पूरा मक्का जल उठा। आपने कहा बात पहले ये कहना है कोई अल्लाह नहीं है, ला इलाहा, फिर कहना है अल्लाह एक। अगर इसका उल्टा भी इशू उठाया जाता तो भी मुखालफत हमारी समझ से कम होती, लेकिन अल्लाह जो हकीमों का हकीम है उसने वो इशू उठवाया कि नहीं साहब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इनसे कोई 1% भी नीचे नहीं आने का है। भाई अगर ये कहा जाता अल्लाह है, ये बात नहीं कही जा सकती। ये कहने की क्या जरूरत नहीं, अल्लाह कोई नहीं है, ये पहले बोलो फिर बोलो अल्लाह एक है। तो पता है चला कि अल्लाह के रसूल का जो असल गम है, जो आप कह रहे हैं कि गम मेरा साथी है, पहला गम है कि लोग शिर्क करके अपनी जिंदगी तबाह कर रहे हैं और कयामत में जो है इसका, क्योंकि बकिया सारे गुनाह के बारे में तो चांद के दे कि अल्लाह माफ कर दे, लेकिन इसके बारे में तो कुरान खुलकर बोल दिया इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही, कि मैं शिर्क करने वाले को माफी नहीं करूंगा। अल्लाह के रसूल को ये गम खाया जा रहा है। तो एक गम किस चीज का है? शिर्क का है। अब अगर उम्मती कहीं बिदत करने के बजाय शिर्क पर आ जाए तो क्या मामला बनेगा? आज हमारी कैफियत क्या है? आज हमारी कैफियत बिदत तो बात की हो गई, हम शिर्क में क्या हो रहे हैं, डूबे चले जा रहे हैं। ये तो हर वक्त दुआ करते रहना चाहिए, परवरदिगार आलम शिर्क से हिफाजत फरमा। बड़ी खतरनाक चीज है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर गम से निकालना है तो कम से कम अपने, हालांकि ये तो हमारी मजीद जिम्मेदारी है कि हम दूसरों को भी शिर्क से निकालें, लेकिन उम्मत दूसरों को कब शिर्क से निकालेगी? जब पहले खुद शिर्क से निकल आए। अगर वो खुद शिर्क में मुब्तला है तो किस मुंह से? मिसाल के तौर पर एक आदमी जो है वो कब्र पे सजदा कर रहा है, आज में धारवाड़ का देखा सजदा कर रहा है, वो किस मुंह से कह सकता है किसी गैर मुस्लिम से कि तुम इस पत्थर के सामने क्यों सजदा करो? कैसे कह सकता है? वो नामुमकिनात में से है। भाई नेहरू जी ने यही तो तकरीर में कहा था अजमेर में, कहा हिंदू और मुसलमान को लड़ने की हमारी समझ तो कोई वजह नहीं आती है। हमारा खुदा जमीन के ऊपर बैठा हुआ है, तुम्हारा 2.5 फीट नीचे है, बच्चा क्या फर्क है? तुम भी सजदा करते हो, हम भी सजदा करते हो, तुम भी फूल चढ़ाते हो, हम भी फूल चढ़ाते हैं, तुम भी उसके सामने झुकते हो, हम भी उसके सामने रहते, तुम भी उससे मांगते हो, हम भी उससे मांगते हो। हमने तुम्हें क्या, हमारी तुम्हारी लड़ाई का तो समझ नहीं आता। भाई हमारा ऊपर है, तुम्हारा नीचे, बच्चा कोई फर्क नहीं है। लोग ताली बजे क्या बात कही, और जूता मारा सारे मुसलमानों को, शाल में लपेट के मारने वाली जो बात बोलते हैं वो शाल में लपेट के मारा गया। अल्लाह के रसूल की पूरी जिंदगी इसी गम में हुई कि काश दुनिया शिर्क से बच जाए और उम्मत काश बिदत से बच जाए। आज उम्मत का यही दोनों में मामला क्या हो रहा है, गर्क हो रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो है उम्मत को शिर्क से और बिदत से हमारी हिफाजत फरमाए। एक बात और कह के अपनी बात खत्म करेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद फरमाया कि अल-इल्म सलाही, इल्म मेरा हथियार है। पूरी दुनिया क्या कह रही है कि इस्लाम तलवार के बुनियाद पर फैला। इस
इस्लाम किसके बुनियाद पर फैला? तलवार के बुनियाद पर। मैं एक बार सफर कर रहा था तो एक साहब पर्चा बांट रहे थे, पर्चा बांटते हुए जा रहे थे, हमने भी उठा लिया। उसमें हिंदुइज्म के और हिंदुत्व के बारे में लिखा हुआ था। तो बगल वाला बंदा वो देखा कि मुसलमान आदमी है भी, तो बहरहाल थोड़ी देर के बाद हमारी उसकी बात होने लगी। उसने कहा मौलाना साहब सही सही बताओ कि हिंदुस्तान में तलवार के बल पे इस्लाम फैला कि नहीं फैला? उसने एक कुरान मजीद की आयत लिखी थी, उसमें उस पर्चे में तर्जुमा लिखा था, आयत नहीं लिखी थी, तर्जुमा लिखा था कि काफिर तुमको जहां मिले वहां तुमको कत्ल कर दो। हमने कहा कि अगर ये आयत यही तर्जुमा है और यही इसका मतलब है तो तुम कैसे बचे रहे? आज हम तो 1000 साल तक हुकूमत कर चुके, हम तो खत्म कर चुके हो, तब तक कहानी बदल गई होगी। जिस मुल्क की आप बात, गौर से मेरी बात समझे, जिस मुल्क की आप बात कर रहे हैं उस मुल्क में अंग्रेज से पहले हम लगातार 900 कुछ साल हुकूमत कर चुके हैं। अगर ये आयत जो तुम आज हमको समझा रहे हो, ये अगर ये आयत का यही माना होता और 900 साल पहले हम इस आयत को समझते होते तो आज ये पर्चा बांटने वाले तुम मौजूद नहीं रहते। उसने कहा बात तो सही। हमने कहा इसको समझने की कोशिश करो क्या है ये आयत। तो इस तरीके से ये पूरी दुनिया ने बावर कराने की कोशिश की कि इस्लाम तलवार पर फैला। अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि मेरी तलवार, ये नहीं कहा कि मेरी कुव्वत तलवार है, ये कह सकते थे, या ये कि मेरी बहादुरी क्या है, तलवार है। आप कह रहे मेरी तलवार इल्म है। हमने इल्म की बुनियाद पर लोगों के दिलों को फतह किया है। क्यों? हमने ऐसी लॉजिक पेश की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की जानिब से इस्लाम को इतना अच्छे अंदाज में लॉजिकल वे में पेश किया कि लोग क्या हो गए, सरेंडर हो गए, कोई बात ही नहीं कहने की रह गई। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि इल्म जो है ना, इल्म मेरी तलवार है, जिसको तुम समझ रहे हो कि जिस तलवार की बुनियाद पर इस्लाम फैला है, उन लोगों को कम से कम इस हदीस पर गौर करना चाहिए कि अल्लाह के रसूल खुद फरमा रहे हैं कि इल्म के जरिए मामला हुआ है। लोगों को समझा करके, लोगों को बुझा करके, लोगों को अखलाक पेश करके, कितने वाकयात हैं इस बुनियाद पर। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक यहूदी से जंग हो गई, लड़ाई, एक जंग हो रही थी। हज़रत अली बड़े बहादुर आदमी, उसको पटक दिया, खंजर निकाला, मारने के लिए तैयार हुए। जब वो मारने लगे तो ये यहूदी बोला अब तो सजा मर ही जाएंगे, इन्होंने उठाकर उसके मुंह पे थूक दिया। उस यहूदी ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुंह पे थूक दिया। अब यकीनी बात है कि जो खंजर मारने जा रहा है तुमने थूक दिया तो उसका गुस्सा तो और तब पर ही हो जाएगा। हज़रत अली ने जैसे ही थूका वैसे हट गए, कहा जाओ। वो बड़ा परेशान कि यार हमने इनको थूका तो हमको तो डबल मारना चाहिए था इनको, ये तो छोड़ दिए। तो उसने पूछा क्या बात है, आपने छोड़ा मुझे क्यों? कहा जब पहले मरतबा मैंने खंजर उठाया था मारने के लिए तो हमारी तुम्हारी दुश्मनी इस्लाम की बुनियाद से थी। जैसे ही तुमने थूका अब हमारा गुस्सा दुश्मनी हो गया था, मैं अपने गुस्से की बुनियाद पर किसी आदमी को कत्ल नहीं कर सकता हूँ, इसलिए तुमको छोड़ दिया। दोबारा लड़ोगे मार डालूंगा। छोड़ दिया क्योंकि इस वक्त अगर मैं मारता तो मेरी जात मारने की बनती और मैं अपनी जात की वजह से किसी को मार नहीं सकता, ये हमारा इस्लाम नहीं कहता है। इसी बुनियाद पर वो मुसलमान हो गया, इसी बुनियाद पर वो मुसलमान हो गया। ऐसे ही मुसलमान होने वालों की तादाद है जिसको इस्लाम के मानने वालों ने अखलाक। आज क्यों नहीं लोग मुसलमान हो रहे हैं? क्यों नहीं हो रहे? हमारे अखलाक ऐसे खराब हो गए हैं। अभी देखो पूरे शहर में रात में वो बाजारों में नेपाली होते हैं जो क्या करते हैं, चौकीदारी करते हैं, यहाँ भी करते होंगे। आप बताइए क्या नेपालियों ने पूरी दुनिया पे ये बात नहीं कही कि मैं ईमानदार हूँ, मैं चोरी नहीं होने दूंगा? किसको रखा जा रहा है रात में चौकीदारी के लिए? उस नेपाली को रखा जा रहा है। यहाँ से नेपाल 2500 किलोमीटर है। वहाँ का बंदा यहाँ ला, पूरे हिंदुस्तान की ही कैफियत है। वो जो चौकीदार रात में डंडा बजा बजा करके पूरे मार्केट की हिफाजत कर रहा, वो कौन है? ज्यादातर सब नेपाली है। उन्होंने एक छाप छोड़ी ना कि हम ईमानदार हैं, लिहाजा उस छाप की बुनियाद पर सारी दुनिया उनके सामने सरेंडर हुई। हमारी इस वक्त बहुत संजीदगी से ये बात आपसे कह रहा हूँ, पूरी दुनिया में मुसलमान की कोई एक सिफत ऐसी नहीं है जिसकी बुनियाद पर दुनिया ये कह सके कि साहब ये मुसलमान है। कोई एक सिफत ऐसी नहीं। मिसाल के तौर पर सरदार है कौम में,
सरदार ने ये तय कर रखा है कि मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा, भीख नहीं मांगूंगा। पूरे हिंदुस्तान में कभी सरदार आपको भीख मांगते नहीं मिलेगा। कोई पागल वागल हो वो अलग बात है, एक आध कहीं, लेकिन आज हमारा मामला क्या है? कोई मोहल्ला, कोई शहर, कोई स्टेशन ऐसा नहीं है कि उस मांगने वालों में हम 80% नहीं हो। ये उस नबी के उम्मती है जिसने मांगने को हराम करार दिया है। वो उसका आदमी है जिसमें यहाँ कोई फार्मूला ही नहीं बयान किया गया, उसके बावजूद उसके यहाँ कोई मांगने वाला मौजूद नहीं है। कोई सिफत इस वक्त पूरी दुनिया में ऐसी नहीं है, एक सिफत कि हम ये समझ सके किताब नहीं। मतलब कोई आदमी बोलेगा साहब हमने फला आदमी से व्यापार किया, वो मुसलमान था, झूठ बोला, आप सुनते ही कह रहे साहब देखो मुसलमान झूठ नहीं बोल सकता, ऐसा हम कहने के लायक नहीं है, कोई एक सिफत भी नहीं है। और अगर ऐसी 10 सिफत हो जाए, 10%, जितनी सिफतें अच्छी हैं उसकी 10% अगर हमारे अंदर हो जाए तो हम दुनिया पे रूलर हैं। कभी आपको परवरदिगार आलम इस हालत में चाबी नहीं देगा दुनिया की, ये बात नोट करने आज, कभी चाबी नहीं दे सकता वो। क्यों? क्योंकि उसको अपनी इस दुनिया को चलाना है। अगर हमारे हाथ में चाबी दे देगा तो हम तो कांटा बो के छोड़ देंगे, इसलिए चाबी मिल नहीं सकती है। चाबी मिलने के लिए अखलाक सबसे पहले लाना है। वो जब तक अखलाक, जिनके पास चाबी है उनके अखलाक है। एक साहब मैंने कहा ऐसे तकरीर की तो उन्होंने मौलाना जिनको अल्लाह ने चाबी दे रखी हो कौन बहुत नेक लोग हैं, कौन बहुत नेक लोग हैं। हमने कहा तुम उनका जिना देख रहे हो, शराब देख रहे हो, नंगापन देख रहे हो ना, ये उनका जाती मामला है। ये बताओ वो अपने पड़ोसी को सताते हैं? जापान में लकड़ी के घर होते हैं, जब आदमी चलता है ना तो बाजू वाले को क्या होता है, खिलता है घर। जितने घर में चप्पलें हैं सब कपड़े की होती हैं ताकि बाजू वाले को तकलीफ नहीं पहुंचना चाहिए। आज हम सबसे ज्यादा किससे परेशान हैं? अपने पड़ोसी से परेशान है। हमारी लड़ाई किससे है? पड़ोसी वाले से है। अगर ताजिर का पड़ोसी है तो ताजिर से लड़ाई है, घर का पड़ोसी है तो घर से लड़ाई है। वो चप्पल मैंने देखा, टीवी सबके पास है, हर घर कमरे में, हर घर के हर कमरे में टीवी लगी है। कोई यहाँ तो टीवी और यहाँ भी टीवी है, हर टीवी वाला अपना प्रोग्राम हेडफोन लगा के सुनता है, टीवी ऑन करके नहीं सुनता है कि ताकि दूसरे कमरे, क्योंकि लकड़ी की सारी दीवारें दूसरे वाले को तकलीफ पहुंचेगी। अपने घर में अपने अम्मी अब्बू के कमरे में आवाज नहीं जाए, वो हेडफोन लगा करके बच्चा सुनता है। ऐसे नहीं चाबी दी गई है, इसलिए चाबी दी गई है। और वो चाबी आपको मिल सकती है, जब तक ये अखलाक पैदा नहीं करेंगे तब तक नहीं मिलेगी। और वो अखलाक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हैरत तो यही है, हमारे पास कुरान मौजूद, हमारे पास हदीस मौजूद, हमारे पास खानकाहें मौजूद, हमारे पास मसाजिद मौजूद, हमारे पास जुमा का खुतबा मौजूद, हमारे पास तकरीरें मौजूद, तरबियत कुछ नहीं, सिफर। उनके पास कुछ नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं होता है, कोई किताब मौजूद नहीं है, कोई कुरान नहीं है, कोई अल्लाह की किताब नहीं, कोई नबी की उनके पास, उसके बावजूद तरबियत का आलम। हमारे पास हर जानिब से तरबियत का इंतजाम किया गया और हमारा मामला इस तरह से खतरनाक है। एक आम सी बात है, आप शहर में किसी से कह दें आपका बड़ा अच्छा दोस्त हो, 1000 रुपए दे दो कल देंगे, कल आपको नहीं देना है, उसको देना ही नहीं है, कल चाहे भले जेब में रखे रहे फिर भी नहीं देना है, कल परसों देगा, 2 दिन बाद देगा, और इसके भी चांसेस देने न दे, इसके भी चांसेस, ऐसा तो बहुत कम चांसेस हैं कि वो कहे कि कल दे दूं और कल ला करके आपको हाथ में हवाल दे कि मैंने वादा किया तो ये ले लीजिए। ये अखलाक जब तक हम पैदा नहीं करेंगे तब तक मामला में, वो अखलाक पैदा कहाँ से होते हैं? अल्लाह के रसूल की तालीम हासिल करो। इल्म सलाही, इल्म हमारा हथियार है। अल्लाह के रसूल की जिंदगी का मुताला करें, उसको समझने की फिक्र करें तो इंशाल्लाह हमारी जिंदगी में इनकलाब आ सकता है। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो इसके बाद आगे गुफ्तगू करेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुभानअल्लाह व बिहम्दिही, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।